Hello and good afternoon. A very, very warm and what to say, heartwarming welcome to Riddhi. And Riddhi, welcome you on this particular show where we will be discussing enormous things related to career counseling. Hi, Smriti. It's a great pleasure to be here, and thanks for giving me this opportunity. You have just grabbed it, dear. I haven't given it, you have grabbed this opportunity. Yeah, yeah, So, first and foremost, Riddhi, let the audience know who you are and from where you find this particular area of career counseling. कहाँ से आपने शुरुआत करी? What were the backgrounds in which you work? yeah. So, I would like to say that I hail from an HR background. I'm a BCom graduate, and I was working in recruitment industry for 8 years. Mm-hmm. So, deep down, actually, always my role was to guide people. Oh, So earlier, I used to guide the individuals to get the jobs which are matching to their skills. mm-hmm. But I I took a career break, so I gave some time to my family, a good decade, and now I have founded RITS Career Counseling. So I work closely with students and I help them to move from confusion to clarity, not just in choosing careers but understanding themselves better. So I am on a mission to help 1 lakh high students to discover and Okay, derive their dream careers. This is okay. the mission of my company, that is RITS Career Counseling. Wow. So you want to say that while you were working with HR professionals, so deep down you come to know that you have a niche or you have a calling to guide people, right? Yes, yes. Because Wow. now, actually, when I interact with students, I can relate that my base skills or my niche skills is to help people, is to guide people and lead them to the correct career path. वाओ लाइक दिस इज सो सो गुड बट इट वाज ड्यूरिंग आपका जब आप करियर के प्रोफेशनल करियर में थे राइट Hmm. आज की Hmm. डेट में यू आर डीलिंग विथ 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स Hmm. व्हाट डू यू से कि आफ्टर मतलब व्हाट इज द मेन डिफरेंस आज अगर उनको करियर गाइडेंस मिल जाता है एंड अगर वो प्रोफेशन में जाने के बाद अपना नीश ढूंढ पाते जैसे आपने या मैंने ढूंढा व्हाट मेक्स द हाँ, डिफरेंस यस सी द डिफरेंस इज मैंने हमेशा देखा है मोस्टली द मिलेनियल जनरेशन द जनरेशन फ्रॉम विच यस वी आर एक्चुअली वी लाइक समथिंग बट वी आर डूइंग समथिंग एल्स सो देयर हैज बीन राइट राइट ऑलवेज अ गैप वी आर गुड एट समथिंग but because just life gave us some paths we started just walking out on those paths. But राइट राइट the new generation, the Gen Z, I feel that students are so talented, but despite being talented, also, I feel they are lost. I feel that there is a huge gap between the potential they have and the clarity they have. That's where I decided like RCC will come into picture. That is Mm-hmm. RITS Career Counseling. Mm-hmm. So it's Right. not just about careers, but it is about helping the student first to understand themselves what they are. Because Mm-hmm. the trend is वैसा है कि इन्होंने किया तो हम भी वही करेंगे, यही है ये. देर आर 7 ट्रेडिशनल करियर्स, तो सबको Right. लगता है कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ किया तो ही मेरा करियर होगा, तो ही मेरा फ्यूचर होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. You mean to say उनके पास potential है. You mean to say they have मतलब उनका caliber बहुत ज्यादा है but still they are not guided properly, right? दे आर नॉट गाइडेड प्रॉपर्ली. You stated a particular term, you tossed a term of herd, something related to herd mentality. What is this herd mentality all about? Yeah, the herd mentality is like that, that because it's like a flock of sheep, all the sheep are going in one Right. direction. I will Similar also be in one direction. Yeah. direction. Hmm. Yeah, yeah. This is majorly I have seen in PCB students, Hmm. the neat Hmm. culture basically. Hmm. Hmm. Everyone Hmm. feels like, नीट नहीं किया तो कुछ भी नहीं है मेरा करियर. तो सबको लगता है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, मुझे एमबीबीएस ही करना है. बट अगर आप उनको पूछोगे कि आपको क्यों एमबीबीएस करना है या आपको Hmm. एमबीबीएस में कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, तो बच्चों को कोई भी आइडिया नहीं होता आइडिया है. ही नहीं है राइट हाँ, मतलब दे डोंट इवन नो इतना डिटेल में कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होगा, डेंटिस्ट का क्या रोल होगा, ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन क्या करेगा, रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, या फिर एक सर्जन क्या होता है. तो ये सारा अ, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पहले तो.
तो हम्म। तभी उन्हें क्लैरिटी मिलती है. तो जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड इज डूइंग नीट, आई विल ऑल्सो डू I नीट. will also do एंड it. बेसिकली, हाँ, एंड बेसिकली यहाँ हमारा कल्चर ऐसा है ना कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मार्क्स, वी आर नॉट Hmm. फोकसिंग ऑन द skills of the student. So many a times the students are not aware that what skills they are good into. And yes, absolutely. और ये जो herd mentality and the role mapping आपने बोला कि they don't know what ophthalmology या कोई particular surgeon क्या करेगा, they don't know what a physician will do. ये role mapping नहीं, they just know a term Hmm. and they are Term. fascinated about it. और या फिर हो सकता है क्लास का टॉपर ये कर रहा है तो I can also do it. A little bit of motivation from various sector जो भी उनको ऑनलाइन रील्स में मिलता है या माइट भी शायद उनके ग्रुप सर्कल में जो भी बात की जाती होगी. सो यस, दिस Correct. इज द रियल पेन पॉइंट. बट व्हाई एंड हाउ डू यू थिंक कि अगर आज का ये हर्ड मेंटालिटी वाला बच्चा अर्ली स्टेज में इसको सही गाइडेंस मिल जाएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा? व्हाट विल बी द थ्रोटल वेयर ही विल रिच? See, अगर ये स्टेज के बंदे को थोड़ा सा अगर हम गाइडेंस दे दे, तो पहले तो उसे पता चलेगा कि बेटर सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है. तो हम्म. कौन से सब्जेक्ट लेने से उसे क्या पता चलेगा. जैसे अभी देखो, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा नीट दे रहा है, बट हम्म. एक्चुअली वो नीट बंदा है ही नहीं, वो तो काउंसलिंग साइकोलॉजी का बंदा है. तो हम्म. दो हम्म. अगर उसने साइंस लिया है फिर भी वो काउंसलिंग साइकोलॉजी में जा सकता है. तो ये हम्म. उसको नहीं पता होता है क्योंकि सब्जेक्ट क्लैरिटी नहीं होती है. फिर क्या, ऑप्शंस अवेलेबिलिटी अनदर, नहीं पता है उसको, ऑप्शंस ही नहीं. उसको ये नहीं मालूम सेम एजुकेशन मुझे एग्जैक्टली exactly मेरे रोल को डिफाइन कर सकती है, ये वो नहीं जान रहे एग्जैक्टली हैं. राइट. वो एंड राइट. दिस इज द मतलब व्हाट टू से, दिस इज अ मिसकंसेप्शन, मिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो लाइक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ विच ये इस तरीके का चॉइसेस बच्चे ले रहे हैं. इनफैक्ट यस. I have seen Riddhi, many professionals, high earning professionals are struck because of don't not having a role clarity. मतलब क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा था सो दे वेव्ड ऑफ टिल दिस पर्टिकुलर जो भी उनका अभी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में. बट नाउ दे आर स्ट्रक. यस. अभी समझ नहीं आ रहा अभी आगे क्या करें. So because of this thing, they feel later stress in their career. They are not actually enjoying it. Like I can give you an example of a working professional whom I counsel. Due to the family pressure, this kid was forced to do BTech in ओके. AI, that is हम्म. software engineering. Now what हम्म. happens? He finishes his engineering just because करना है करके कर लिया. But जब वो hands on IT कंपनी में जाता है काम करने के लिए, ही इज नॉट एंजॉइंग कोडिंग, उसको आती ही नहीं है क्योंकि वो तो उसका फोटे ही नहीं था. बट जब हमने उसका एनालिसिस किया, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, वी केम टू नो कि ये तो एक्सट्रोवर्ट बंदा था, तो ये तो हम्म. टेक्निकल सेल्स के रोल में ये ज्यादा परफेक्ट था. एंड ही यूज टू कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ एग्रीकल्चर. तो जहाँ से ओ. जनरेशन टू जनरेशन एग्रीकल्चर में बहुत थे ये इंडस्ट्री में ओके. उसके हम्म. forefathers and all. तो हम्म. एक्चुअली दैट वाज देयर इन हिज ब्लड. तो एक्चुअली तो वो जॉब ऐसा उसके लाइफ में वो कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए तो 8 मंथ में ही उसने वो जॉब भी छोड़ दिया. एंड देन ही इज हम्म. सिटिंग एट होम, ही इज गेटिंग सो स्ट्रेसफुल. The other हम्म. kids are going ahead, they are earning, they are already getting income, but he is not getting income. So I suggested him to do a post graduation in agricultural business management, and now he is so happy because he knows that finally in his roots it's the agriculture management in his blood. So if Just he a will, small tweak, Riddhi, just a small tweak. It saved his life. It saved his like generational employability, right? He yes, doesn't need to yes, go out of his own place and search something else. He was capable enough. He had the land and he had those seeds, but the only thing was missing that was the education to transform the ladder. Wow. Riddhi. Wow, yes, how awesome and how good it better it can be जब we as a career counselor वो गैप को फिल कर देते हैं, वो रिमेनिंग exactly. स्पेस को फिल कर देते हैं. वाह वाह वाह, just wonderful, just wonderful. अब now I Yes. just मतलब just it's just popping in my mind. There's one very
very mythological question which come every time in my mind when I say about career counseling. Parents usually say one thing. अच्छा, ये तो एडमिशन के टाइम में जरूरी होता है ना, तो हाउ डू यू कैलकुलेट इट? See, actually क्या है ना, parents are not at all having the awareness about the futuristic careers which are going to be in demand. See, gone are the days where the seven traditional careers are going to dominate the industry. The careers like, medical, software engineering, CA, CS, law. But what is going to happen is in commerce and science sector, AI is going to affect this a lot. So if there are 100 jobs, the 30 jobs will be done by AI. So what Correct. the the demand will be there, but the supply will be there, but the demand will be less. So, but in comparison of those 30 jobs which AI is doing, there will be some new futuristic skills. जैसे एक AI एथिकल हैकर, एक ये नया रोल आया है, बट किसी राइट। को भी इसके बारे में पता नहीं है, सबको लगता है बस नेटवर्क इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर मैनेजमेंट। बट उसके जगह पे अगर वो बच्चा कुछ ऐसा पढ़े जो नए वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स के हिसाब से हो, तो उसे वो डेजिग्नेशन मिलेगा, उसे वो रोल मिलेगा और वो एंजॉय भी करेगा, क्योंकि उसमें एआई कंपोनेंट होगा। और राइट। एआई सभी को ही सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं सभी को बोलती हूँ कि एआई इज नॉट अवर कंपिटिटर, इट इज अवर असिस्टेंट। इट इज जैसे बहुत सालों पहले कंपेनियन। इंटरनेट, राइट। हाँ, लाइक इट्स अवर कंपेनियन, तो हमें उसको साथ लेके चलना है। वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी कैन नॉट डिनाई इट। इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो जैसे इंटरनेट सेंसेशन आया था, तब कंप्यूटर्स आए थे, एंड बहुत फैंसी चीज होती थी कि हम साइबर कैफे में जाएंगे, हम लेटर लिखेंगे, हम ईमेल भेजेंगे, एंड देन नाउ इट बिकेम सो मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, बिकॉज जस्ट कांट डू विदाउट इट, राइट? तो सिमिलरली एआई भी वैसा ही बन जाएगा। तो सबको लगता है कि एआई और मशीन लर्निंग ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिसकी बहुत डिमांड है, बट ऐसा नहीं है। अभी हम देखें तो देर आर 35 टाइप ऑफ डिफरेंट engineering specializations which are there. The latest being, agricultural engineering is gaining very much importance, and even sustainable energy resource engineering is राइट। also राइट। gaining lot राइट। of importance, क्योंकि मदर अर्थ का हमें ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स को है ना, ये सारे करियर्स के बारे में ना अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर ये हम्म। अवेयरनेस उनको होगी, then they will feel safe, because they don't have that awareness. They feel that the future of the kid is threatened, but it's not like that. अब जैसे हमने बात करी तो टोटल फैक्टर ऑफ एआई, जैसे कंप्यूटर से हम लोग इतने ज्यादा यूज टू हो गए, टेक्नोलॉजी से यूज टू हो गए हैं, सारी चीजें हम हाँ। इतना फ्रेंडली हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट आई थिंक जो बहुत प्रोमिनेंट सवाल यहाँ पर आता है, व्हेन रिद्धि हम्म। मैक्सिमम चीजें एआई पे अवेलेबल है, अ चाइल्ड कैन राइट समथिंग अबाउट हिम और हर ऑन चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी एंड ही और शी Yes. कैन आस्क एंड रिलेट। चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी कैन गिव द एग्जैक्ट लेआउट एज पर देम, है ना, करियर क्या Yes. होना चाहिए, स्ट्रीम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन, मल्टीपल चीजें, जैसा पूछा वैसा जवाब। व्हाट डू यू Yes. हैव टू से इन दिस, जब बच्चा ये कहता है I have all information about my future, मैंने चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी या एनी एआई एजेंट से, मैंने एप्लीकेशन से आई हैव कंफर्म्ड कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रीम फॉर मी, व्हाट अ Yeah. पेरेंट और This अ is a करियर very, काउंसलर शुड अंडरस्टैंड? yeah. So this is a very interesting thing which I would like to highlight, that कि देखो, साइंस एंड कॉमर्स करियर्स डेफिनेटली एआई इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जहाँ पे ह्यूमंस है, ह्यूमैनिटी है ना, वहां पर एआई इतना नहीं अफेक्ट करेगा। तो भले ही हम चैट जीपीटी को 1000 क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ लिमिट डेफिनेटली आ जाएगी जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टीज जो लगेगा उसे, या फिर जो ह्यूमन टच लगेगा, एक फीलिंग, एक एम्पैथी जो उसको चाहिए, वो तो एक ह्यूमन ही दे पाएगा, एक मेंटोर ही दे पाएगा ना उसको। कितना राइट। भी कोई पता चल जाएगा आपको रोड मैप, लेकिन एक्चुअली व्हाट इट टेक्स टू गो ऑन दैट पाथ, वो तो अगर What तुम्हें उस grit, पाथ पे what चलना है information, तो। what all ethics will you require to go this particular roadmap? That only a mentor or a career counselor or a person जो आपको अच्छे से जानता है कि आपकी traits क्या हैं, एग्जैक्टली right? You क्या can है, fake क्या multiple है। things on AI, है ना, आप अपने बारे में अच्छा अच्छा लिख सकते हो,
तो वो अच्छा अच्छा आंसर देगा, है ना? जैसे Yes, लाइक yes. yesterday we were talking कि कचरा डालोगे तो कचरा, the dump you will input in the AI, the dump you will receive from the AI, right? You are not at all prompt engineer, अभी तुमको ये नहीं पता है कि prompts कैसे लिखते हैं, और चलो ठीक है, you learned it as well, है ना? You mastered it as well, but still there is a need of humanitarian effect or emotional connect जब things go wavy, रोड मैप होने के बाद भी things go wavy, right? Exactly. है ना? Yes, मतलब yes. द लास्ट, एक्चुअली रिद्धि, मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था हमारे साथ में थी मिसेस विद्या, एंड विद्या पिंगले इज एन सीजन्ड जर्मन लैंग्वेज प्रोफेशनल. She is an Oh, internationally, yeah, she does invigilations online for German language test, and she said the uh, on a parental side actually, कि आज का हाँ. पेरेंट चाहता है कि बच्चा किसी तकलीफ में ना जाए, है ना, उसको सब कुछ स्मूथ स्मूथ मिले, which is not a reality. Life Exactly. gives you hassle. Life gives Hmm. you मतलब thrones and stones, and you have to pick the better one and build your own house with that, right? So जब तक जो हमें भी, वो फेलियर का टेस्ट नहीं पता चलेगा तो हमें या सक्सेस कैसे हम एंजॉय कर पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक द वन फेलियर एंड द सेकंड जो आपका स्टेप होगा, दैट विल बी एक्सपीरियंस प्लस टू, स्टेप नंबर टू. सो वो Yes. हमको हमको अलाउ करना चाहिए बच्चों को, गो थ्रू इट, let you fail, let you get all those hassles, and तभी आप रिफाइन होंगे. ओके, अगर True. आज रिद्धि, आज जो भी हमने इतना सारा डिस्कशन किया, अगर आज की स्टेट में एक बच्चे को या पेरेंट को ये फील होता है कि अच्छा हमको करियर, हमको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो व्हाट शुड बी, लाइक उनको सबसे पहला क्या चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए अपने डिसीजन को लेने के पहले? किसी भी स्ट्रीम का डिसीजन हो सकता है, सब्जेक्ट का हो सकता है, करियर का हो सकता है. बच्चा और पेरेंट, हम्म. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए उनकी? सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये होनी चाहिए कि पहले तो है ना हम बच्चे को प्रेशराइज ना करें और हमें उसे ना कंपेयर भी नहीं करना चाहिए. प्लस सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इंडस्ट्री का एक्चुअल पिक्चर आफ्टर 5 to 7 years क्या होगा, किस तरह के फ्यूचरिस्टिक करियर्स आने वाले हैं, करियर किस आने तरह की वाले. डिमांड आने वाली है, और हम्म. वो टाइप के डिमांड के जॉब्स के लिए अभी कौन से स्टडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चल रहे हैं. जैसे अभी देखो, देर इज अ बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड, फूड हम्म. टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, डायटिक्स है, बहुत कुछ है. इवन आई हैड अ पेरेंट, दे वर नॉट अवेयर एट ऑल कि एक्सेसरी डिजाइनिंग इज ऑल्सो वेरी बिग इंडस्ट्री राइट नाउ. अगर सब बच्चे मार्क्स लाके 95 100 ही लाएंगे तो क्या 80 85 वाले कहाँ जाएंगे. राइट. वो भी तो बच्चे हैं, उनके पास भी तो कुछ स्किल्स है, भले वो मार्क्स नहीं लाए, बट दे माइट बी सोशल इन नेचर, दे माइट बी आर्टिस्टिक इन नेचर. तो उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग करियर्स हैं जहाँ पे डेफिनेटली दे कैन एक्सेल. तो ये एक कंपैशन हमें बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं रखते हैं और हम उसको हर वक्त जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसने किया तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते. करने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट पहले वी शुड ऑल्सो नो कि बच्चे का करियर इंटरेस्ट क्या है, बच्चे के स्किल्स क्या है. तो ये मतलब सारे द पैरामीटर. फर्स्ट मोस्ट, मेरे हिसाब से जो फर्स्ट मोस्ट, अगर मैं उसको स्ट्रीमलाइन करूं, शॉर्टली बोलूं, तो सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अ चाइल्ड, ये पहला स्टेप है. सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस वेरी सेल्फ इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस, है ना, जब भी बच्चे के बारे में आपको पता चल गया, तो आपका पहला स्टेप क्लियर है. नाउ यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द थिंग्स कि अच्छा ठीक है, मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट है, जैसे आपने बताया बच्चा एक्सट्रोवर्ट था, है ना, बट उसको आईटी हम्म. सेक्टर और चलो बीटेक कर लो और सब कुछ हो गया, बट ही कैन नॉट सर्वाइव, है ना. The same was my story, Riddhi. I was an extrovert and I cannot sit a day long behind laptops and computers and do the entire coding coin. I said, भैया ये मेरे से नहीं होने का, right? So this was me. That's why I took decade. I took multiple different मैंने try hit and try किया. But now availability of tools are there, techniques are there, right? Chat, GPT, Right. AI, everything is there, but you need a human intervention to go on the path Yes. and to travel with you, a person
hold your hand and say, बच्चे आगे चलो, I'm standing with you. I think this is a एग्जैक्टली very एग्जैक्टली। important part. मॉरल सपोर्ट, यस यस, मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन मॉडल होना चाहिए बच्चे के लिए इन फ्रंट ऑफ हिम, सो दैट ही फील्स दैट ओके, यू नो, इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे Right, एक right, वो right. होना ही चाहिए। Very Yes, good. So thank you so much रिद्धि, इतना डीप डाइव इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए एंड हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि क्यों सेल्फ डिस्कवरी इतनी जरूरी है, कहाँ बच्चा कहाँ लैक करता है, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स क्यों आके एक लेयर के बाद स्ट्रक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू. exactly. And I really appreciate all those audience. And if there is somebody who is watching us, both the ladies in front of you, discussing about career counseling, please reach out to the nearest career counselors. And if not available, then you can comment as well so that we can reach out to you and share you the insights which are required for you to go ahead and have your own career or the guidance. So, signing off Yes, as of now, thank you so much, Riddhi, once again for sharing the deep dive in depth about career counselings and why it is needed. yes, yes. So even if one student is listening today, this podcast, if he can pause and think before choosing his path, this conversation has done its job. So if you ever feel stuck, you need not figure it out alone. You can look out around, and I'm sure अगर हम डोर को नॉक करेंगे तो डोर ओपन होता ही है, तो गॉड Absolutely, सेंड absolutely. You said the right thing, Riddhi. If you knock the door, definitely the door will be open for door you. will open, You and just there need will to be a search. counselor standing right outside that door to help you out. It's just that Right, you have to right. make space for that counselor. Wow. Thank you so much, Riddhi. Thank you so much for being there on the podcast. And Yeah, we'll surely connect again over multiple factors to discuss more and more. yeah, sure. Thank you so much, Smriti.